I hope my voice is audible. Yes, sir. Good evening, sir. Good Yes, sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So I have gone through your assignment. Let me share one. Okay. So today I'll show you one and two such assignments. I'm picking it randomly. Okay. Don't think that I'm picking up only someone's. No. I'm picking it randomly. So let's see this one first. I hope you can see my screen, right? My screen is Yes, visible. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this one is from Santanu Neuk. Okay. So what is memory? Memory is any physical device capable of storing information temporarily, like RAM, ROM. Okay, Santanu, are you there? So see, you have mentioned the term temporarily. Okay, temporarily, why you have used this term? Don't worry, we'll just discuss. Okay, you don't need to think about that. You don't need to worry anything. I just want to know that why you have used the term, or I will go through a few assignments, and I may ask that why these things are like that. Okay, जिसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्यों आपने ये ऐसा लिखा है, ठीक है? So cannot we store information permanently in a memory device? My first question is that to all of you. Question is, cannot we store information permanently in a memory storage? Yes, sir. Okay, so please rectify it. Okay, then memory devices utilize integrated circuits and are used by operating systems, software, and hardware. Two types of memory: primary memory and secondary memory. Okay. Okay, coming. So two types he has mentioned, that primary and secondary. Primary memory, it is the main part of a computer and determines the size and number of programs that can be stored in a computer as well as the amount of data can be processed. That is okay. Then primary memory stores two types of programs: system software and application software. See, the benefits of this type of assignment is that you will get to know about some different terms also, right? आपने अभी देखा दो टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Can anybody tell me that what is system software? The software which are pre-installed while installing the OS operating system. They are system software. Okay, good. Anyone else? Application software are those which we install after for according to our needs, like browser and video player, etc. Okay, right. Good. So, anyone else wants to answer this question? See, now let me tell you, this system software and application software. इसको ऐसे समझो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दिस इज द मेन पार्ट, और यू कैन से कोर पार्ट. आपके पास अपना लैपटॉप है, राइट? But without installing the operating system, can you operate on it? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप ऑपरेट कर सकते हैं उस लैपटॉप में? आप कमांड दे सकते हैं कि ये वाला फाइल खोल दो और ये सा? No, sir. No, sir. राइट. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मेन, जो हमारा प्राइमरी नीड्स है, मेन जो अपना कंट्रोल है, ठीक है? पूरा हार्डवेयर का जो मेन आप तो जानते ही हो कि क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है
उसको कंट्रोल करने के लिए और उससे जो हार्डवेयर डिफरेंट हार्डवेयर हैं वहाँ कमांड भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, राइट, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, it is a group of programs that control the operations of a computer, right? For example, operating system is a software that controls the hardware in the computer and peripherals and manage memory files and is the interface between application programs and the computer. तो ये जो हमारा शांतनु नेओक है ने सही लिखा है। शांतनु नेओक ने लिखा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होता है जिसको एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, राइट। These are the computer programs meant for the end user, right? Accounting software, processing software are some of the application of some of the examples of some of the application software, yeah, right? ठीक है, some of the examples of application software। क्या कोई और एक एग्जांपल आप दे सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? Microsoft Office, what is that? Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Application these are software. right, application because software. exactly, because these are also designed for some performing some specific tasks। जैसे आपका स्लाइड्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है, या तो आपका ओपन सोर्स में आप गूगल स्लाइड्स ले लीजिए। ठीक है, सो टू मेन सॉफ्टवेयर वी हैव गॉट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। देन उन्होंने लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, नेमली रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। के है, देखते हैं रैम में क्या लिखा है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूजेस दिस मेमोरी व्हाइल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड रीड और राइट मेमोरी। सो इससे आपको एक समझ में आना चाहिए कि देयर आर टू ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म, वन इज रीड ऑपरेशन एंड अनदर इज राइट ऑपरेशन। ठीक है, देन दिस मेमोरी इज टेम्पोररी इन नेचर, और इस टेम्पोररी इन नेचर को हम क्या बोलते हैं? Volatile, right? We have discussed this in the last class. Volatile by nature. Then ROM. ROM consists a basic set of instructions that call the basic input output mana BIOS, okay, which helps to start the operating system. It's a memory unit that can be read from. It is a permanent memory. ठीक है, यहाँ आपने सही लिखा है permanent. That is correct. Now coming to the secondary memory, it differs from the primary memory by the fact that CPU cannot use this memory directly while processing information। ये जो line है, this is very important। Secondary memory, this cannot be directly used by CPU for processing information। The computer uses its input and output devices to access data stored in the secondary memory। The secondary is in the form of the devices which are categorized as either magnetic storage devices or optical storage devices। जैसे आपका पेन ड्राइव है, जैसे आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है, हार्ड ड्राइव है, दिस बिलोंग्स टू दिस पार्ट। बट उसमें आप जो भी करोगे वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर रहा है, सीपीयू उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस डायरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मेन आपने ये डिवाइसेस का मेमोरी का क्लासिफिकेशन बता दिया, राइट, वेरी गुड। So magnetic storage device. In a magnetic storage device that is stored on a magnetized surface, the surface rotates under a small electromagnetic magnet that magnetizes each spot on the surface to record binary digits, right? To retrieve data, a sensor that determines whether it is recorded 0 and 1. The two most common examples are hard disks and floppy disks। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि एक डायग्राम इंक्लूड करना। Has anybody included the diagram for this magnetic storage device or hard disk, जहां आपका सेक्टर, ठीक है, सेक्टर का इंफॉर्मेशन रहेगा? किसी ने इंक्लूड किया था वो डायग्राम? तो कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार देख लेना वो डायग्राम। Then hard disks mostly is installed inside a computer and access data quickly, and a hard disk is made up of a collection of disks known as platters। ठीक है, these platters are coated with a material that allows data to be recorded magnetically। ठीक है, floppy disks are storage devices
consisting of a Miller and vinyl plastic discs coated with magnetic material. That is also okay. But then optical storage devices, CD-ROM, ठीक है. Compact discs, read-only memory. हाँ, क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस ये आते हैं कि CD-ROM जो है ना, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो पूछ सकते हैं आपको. ठीक है. So you may write down the question, what is the maximum capacity of CD-ROM? Or maximum capacity in the terms of maximum memory. Okay. CDR and CDRW, ठीक है. DVD-ROM, digital versatile disc. ये कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि DVD का फुल फॉर्म क्या है. तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल versatile disc और डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली. ये टी आ गया आपका, टी नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है. Bits and bytes, ये ज़्यादा important है. The byte is a unit of digital information that most commonly consists of 8 bits. ठीक है. Historically, the byte was the number of bits used to encode a single character of text in a computer. For this reason, it is the smallest addressable unit of memory in many computer architectures. देखिए, आपने जो लिखा है सही लिखा है, पर यहाँ एक चीज गलत हो रहा है. क्या है? आप फॉन्ट एक ही यूज कर रहे हो. You use the font same font. Okay. And the size should be same. Yeah, you may give different size for the headings, but otherwise this size should be same. See, this font is different, this font is different. So please maintain one font. Okay. Then nibble 4-bit, right? Byte 8 bits, kilobyte 1000 bytes, megabyte 1000 kilobytes, gigabyte 1000 megabyte, and terabyte 1000 gigabytes. Very good. So आप एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछते हैं कि पेटाबाइट क्या है. So 1 petabyte is equal to how many megabytes? Can anybody give me the answer? ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख के रखो, जब आपको लेक्चर मिल जाएगा तब जवाब दे देना. My question is 1 petabyte is how many megabyte? Then exabyte is equal to 1024 petabyte. Zettabyte is 1024 zettabyte. का ये एक्साबाइट हो जाएगा. ये ऐसे कर सिक्वेंशियली याद रखोगे तो 1024 सामने आ जाएगा और सबसे लाके योटाबाइट. करेक्ट, 1024. और अभी तक के क्वेश्चन में मैक्सिमम पेटाबाइट तक ही पूछा है. ठीक है. बीट हो गया, राइट. ओके. नाउ ये इंपॉर्टेंट है. ये 8 बिट मिलके 1 बाइट बनते हैं, सभी को पता है. Am I audible or not? I'm not getting any response. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Thank you. So 1 byte is equal to 8 bits, you know. तो कभी-कभी पूछ सकते हैं कि एक सिंगल बाइट में कितने अलग-अलग वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो या कितने अलग-अलग वैल्यूज हो सकते हैं एक बाइट में. My question is clear. I'm repeating again. How many different values is possible under 1 byte? तो इसके लिए क्या करोगे? You know 1 byte is equal to 8 bits, right? और एक बीट पे क्या वैल्यू आ सकता है? या तो 0 और 1. ये तो सबको पता है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो एक बीट में 0 और 1 हो सकता है. मतलब कितने वैल्यू से? 2. तो आपका कितने बीट्स मिलके एक बाइट बना है? 8 बीट्स मिलके एक बाइट बना है. तो 1 बाइट में क्या हो जाएगा? ऐसा 2 2 2 2 8 बार आ जाएगा. और 8 बार आ जाएगा तो क्या होगा? 2 to the power 8. मतलब ये है कि 1 बाइट मीन्स 2 to the power 8 different values. और 2 to the power 8 is how much? 256. 2 to the power 4 is 16. 2 to the power 5 is how much? 32. 2 to the power 6 is 64. 2 to the power 7 is 128 and 2 to the power 8 is 256. याद रख लेना. और ये जो ये है, क्या बोलेंगे इसको? टेबल है, याद ही रख लेना. 2 to the power 0 is what? 1. 2 to the power 1, 2. Similarly 2 to the power 4 से याद करके 2 to the power 8 तक याद कर लेना. And 2 to the power 10 is equal to how much? Can anybody tell me quickly? 2 to the power 10 is equal to how much? That is 1024. ठीक है, याद रख लेना.
क्योंकि 2 टू द पावर 8 इज 256, 2 टू द पावर 9 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा 1024, याद रख लेना, ठीक है। The terms bits and bytes are often confused, so use interchangeably since they sound similar and both abbreviated with the letter B, ठीक है, सही लिखा है, ओके। So I hope that all of you have gone through my analysis on this assignment of Shantanu Neu. Shantanu Neu, you tell me whether you are there in this class, you are here in this class or not. Classot asa Shantanu? I think not there. Let me check. Shantanu Nai. Okay, no problem. ठीक है, और एक लेते हैं हम, क्या नाम है उसका, संजय फुकन। संजय फुकन, आर यू देयर? संजय फुकन भी नहीं है क्या? ठीक है, ओके। विप्लव सर क्या, आर यू देयर? वहाँ पे आज कोई स्टूडेंट्स थोड़ा कम है ना, देख लेते हैं इनका समय। तो संजय फुकन, मेमोरी, देखो ये अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारा जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आ गया ना, मैंने कैसे किया अभी अलाइनमेंट को चेंज, ओके। मेमोरी, और थोड़ा सा ये नोट जो है ना एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा करो, उसके बाद थोड़ा डिजाइन कर दो ये, ठीक है। और इन सबको फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन कर दो, ओके। इन्होंने मेमोरी का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, प्राइमरी, ओके। हाँ, एक डायग्राम इंक्लूड किया है। एवरीबॉडी प्लीज लिसन, whenever I give an assignment, try to include as many as diagram possible, right? आप खुद हाथ से लिख के भी उसका फोटो स्कैन करके वर्ड में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, Very sir. good. यहाँ जाना, इंसर्ट में जाना, और इंसर्ट में पिक्चर है, ठीक है, वहां पे जाके आप इंसर्ट कर सकते हो, देन ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो चीज इन्होंने नया इंक्लूड किया है, ये मैं बोल देता हूँ, DRAM and SRAM. DRAM stands for dynamic RAM and SRAM stands for static RAM. ठीक है। Now next ROM का भी क्लासिफिकेशन लिखा है, बट इन्होंने डेफिनेशन इनका नहीं बताया, ठीक है। आप लोग एक काम नोट डाउन कर लो, एक एक सेंटेंस में मुझे रिप्लाई करना कि व्हाट इज DRAM एंड व्हाट इज SRAM। डायनेमिक रैम क्या है, मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए इसका डेफिनेशन, एंड व्हाट इज स्टैटिक रैम अभी नहीं, मैं जब ये दे दूंगा तब बता देना, ठीक है। देन ये वाला पूछते हैं बहुत बार, EEPROM क्या है? प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड EEPROM मींस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देख देना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मे नोट इट डाउन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EEPROM एंड EEPROM, ठीक है। जब भी देखो, सब लोग सुन लो एक बार, जब भी असाइनमेंट में एक को ऐसा कुछ नया टर्म मिलता है ना, तो उस टर्म के ऊपर आप एक लाइन जरूर इंक्लूड करना, प्लीज राइट एटलीस्ट वन लाइन फॉर दिस, ठीक है। और यही सब चीज इंपॉर्टेंट होता है आपका। देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इसका यूएसबी डिवाइस, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ओके, वेरी गुड। बिट नीडल्स वाइज, ठीक है, इन्होंने पेटाबाइट तक लिखा, बट पहला जो मैंने चेक किया था उन्होंने पूरा पेटाबाइट तक लिखा था, ठीक है, वेरी गुड। दिस वन इज फ्रॉम
সঞ্জয় ফুকন কোনোবাই সঞ্জয় ফুকনক কৈ দিবা তাৰ মই যেটো চেক কৰি পেলাই কি কৰিছো ঠিক আছে then next বিপ্লৱ শইকীয়া memory hierarchy see this is the again a important one सभी से मुझे अलग अलग चीज मिल रहा है यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड जो किया है ये क्या है मेमोरी हायरार्की है क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी हायरार्की देखो अगर पता है तो यस नहीं पता है तो नो डायरेक्ट रेस्पॉन्स दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं No, sir. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक हो मेमोरी आपको पता है कि स्पीड हाँ मतलब जैसे आपके पास रोम है आपके पास रैम है राइट बट जो आपका मेन मेमोरी है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है ठीक है किसके कंपैरिजन में जो आपका सेकेंडरी डिवाइसेस का मेमोरी है और आपका जो रोम है उससे कंपैरिजन में मेन मेमोरी का स्पीड ज्यादा है आप मेन मेमोरी से भी आगे एक है कैचे एंड व्हाट इज कैचे कैचे मीन्स क्या है वो पोर्शन जहां पे हम जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं या तो फ्रीक्वेंटली जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं ठीक है उस चीज को हम वहां पे रिफर करते हैं वहां पे रखते हैं कहां पे कैचे इज दोज व्हिच हैव फ्रीक्वेंटली बीन एक्सेस যাক আমি বাৰে প্ৰতি মানে বহুত বাৰ এক্সেস কৰি থাকো সেইখিনি ক্যাচেত ৰাখো মানে মেইন মেমৰিতকৈ স্পীড কত বেছি আহি যাব তোমাৰ कैचेट आ जाएगा ठीक है मेन मेमोरी से भी ज्यादा जो स्पीडी होगा जो तो ज्यादा स्पीड देंगे आपको वो क्या है कैचे क्योंकि वहां पे आप वो सारे चीज रख रहे हो जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो ठीक है आप उसके ऊपर क्या है रजिस्टर का स्पीड कैचे से भी ज्यादा है ठीक है क्योंकि रजिस्टर को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है याद रखना रजिस्टर को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है सो द स्पीड ऑफ रजिस्टर इज मस्ट higher than the others memory in the hierarchy. So hierarchy का मतलब है आप कैसे स्पीड वाइज उस मेमोरी डिफरेंट मेमोरीज को ऑर्गेनाइज किए हो तो ये थर्ड क्वेश्चन है आज मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बट आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ बस आप लोग याद रखना और लिख देना चीज ठीक है तो यू नीड टू ऑर्गेनाइज दिस मेमोरीज इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड क्वेश्चन समझ में आ रहा है यू नीड टू ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग गिवन मेमोरी टाइप्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी स्पीड डिसेंडिंग मतलब क्या होता है पता है आपको डिसेंडिंग मतलब बड़े से कम से कम ऐसे ठीक है ग्रेटर देन लेस लाइक दैट मतलब सबतके डाঙৰটো प्रथमতে আহিব তাৰ পিছত তাতকে কমটো তাৰ পিছত তাতকে কমটো सबसे बड़ा वाला पे सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा उससे कम ऐसे आएंगे ठीक है अब यहाँ क्या है स्पीड के अकॉर्डिंग तो स्पीड किसका सबसे ज्यादा है रजिस्टर का है राइट रजिस्टर सबसे पहले आ गया उसके बाद क्या आएगा कैचे आएगा उसके बाद मेन मेमोरी उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क एंड देन मैग्नेटिक टेप बट ये चीज जो मैंने अभी बोला आपको ये लिख लेना और वहां पे भी मेंशन कर देना ठीक है इज द मेमोरी हायरार्की इज क्लियर टू एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड सो इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेस मोड हाँ ये मैं अभी इसमें डिस्कस करने नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर भी याद रखना एक्सेस मोड्स डिफरेंट हो जाएगा आपका ठीक है क्रिटिकल सेक्शन में काम जो कर रहा है वो उसका एक्सेस क्या होगा एक्सेस मोड्स जिस पोर्शन में क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहे हैं तब एक्सेस मोड बंद करके रखेगा ताकि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए देन इन्होंने क्या लिखा है एक्सेस टाइम कितना टाइम लगता है एक्सेस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड्स फॉर अ रीड एंड राइट ऑपरेशन टिल द data is made available or written at the desired location. Very good. Then physical characteristics device can be categorized into 4 main categories: electronic, magnetic, mechanical and optical. कोई मुझे जल्दी से बताओ what do you mean by optical? आपको पता है हम लोग ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं राइट यू नो दिस व्हाट डज दिस टर्म मीन तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट याद रखना आप अपना माउस को उठा के देखो एक लाल कलर का लाइट चल रहा है दिखाई दे रहा है Yes, sir. ठीक है
तो वो ऑप्टिक्स के ऊपर है। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। तो यहाँ 4 कैटेगरीज टीचर ने बताया है। इलेक्ट्रॉनिक, सबको पता है क्या है इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक, यू आल्सो नो दैट व्हाट इज मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल, जो आप वो केबल वाला आप यूज करते हो। और ऑप्टिक्स मतलब जो आप लाइट वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रैम और रोम। और रैम रोम में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, इन्होंने इंक्लूड किया है। वेरी गुड। Dynamic RAM is made up of memory cells where each cell is composed of one capacitor and one transistor. Must be repressed continually to store information. The repress operation occurs automatically thousands of times per second. Okay. Hello. So ये याद रखना the repress operation the DRAM के लिए क्या है, occurs automatically thousands of times per second. ये क्वेश्चन आ सकता है, how many times per second? Thousands of times per second. Static RAM, it retains the data as long as the power is provided to the memory chip. It needs not to be repressed periodically. इसको repress करने के लिए कोई जरूरत नहीं है periodically, ठीक है। SRAM uses multiple transactions for each memory cell. But DRAM में सिर्फ एक ही यूज कर रहा था, static RAM में multiple आप यूज कर सकते हो। SRAM is often used as a capture memory due to its high speed. याद रखना SRAM का स्पीड DRAM से ज्यादा है, सब लोग डाउन कर लो, ठीक है। SRAM मतलब स्टैटिक रैम का स्पीड डायनेमिक रैम से ज्यादा है, इसीलिए हम स्टैटिक रैम को ना कैप्चे के लिए यूज करते हैं। कैप्चे में अभी बताया था कैप्चे का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। तो SRAM इज यूज फॉर स्टैटिक फॉर कैप्चे पर्पस, ठीक है। Then we have extended data output dynamic RAM. It's okay as a RAM sleep. Important है, कैसे बता दिया आप लोगों को। आप लोगों के लिए बस ये असाइनमेंट है, ये मुझे बताओगे the differences between EEPROM and double EEPROM by comment. कमेंट करके बस एक एक लाइन में मुझे आंसर देना, ठीक है। तो ये सब तो सेम ही लिखा है बस। हाँ, ये इसके बारे में बता रहा था आपको। सेक्टर्स एंड ट्रैक, सब लोग एक बार ध्यान दे लो, ये चीज को एक बार देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रैक्स होता है और ये सेक्टर्स मतलब जो उस ट्रैक को जो डिवाइड किए हो ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवीजन, उन सबको सेक्टर्स बोलते हैं। तो जो हेड है उस पार्टिकुलर ट्रैक में आके उस पार्टिकुलर सेक्टर में आएगा जहां पे डाटा लोकेट करता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पेपर में मिल जाएगा। बट ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा बनाया है, राइट। देखो कैपेसिटी भी लिखा है इसमें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आप लोग को, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, मेगाबाइट्स, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड असाइनमेंट, आई हैव फाउंड इट फ्रॉम Biplop Saikia. Please inform him because he is not available now in the classroom. So I hope about the assignment everything is clear. Please say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And I also hope that you have learned something new from this assignment that just I have discussed. Yes, sir. Okay then. So that's all. That's all today. And please don't skip the question. You'll get the video after this lecture, but do not skip the questions. Okay, they are important for you. Thank you. Have a nice evening. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.